All right. So today we are going to continue. Now we are going to continue quant-based reasoning. The same sheet that we earlier did, but we are going to take up the difficult order question, right? इसके पहले we ended up doing we ended up doing the smaller, the easier questions, right? The easier questions that we quickly solved. जिसमें थोड़ा simpler logic of maths involved था. Prime numbers देखे, addition subtraction देखा, matrix देखा हमने, है ना? तो ऐसे अलग अलग टाइप के लॉजिक हमने देखे थे. आज हम थोड़े डिफिकल्ट ऑर्डर सेट करेंगे जिसमें एक थोड़ा हायर लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन लगता है. ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन विद डूइंग दैट. ठीक है, जो क्वेश्चन हमने मैंने कल की शीट लिए, जो क्वेश्चन हमने नहीं करे थे वो अभी हम करेंगे. लाइक दिस सेट. चलो, read it, try to understand and work through it, and then I will tell you the solution. All right, let us do this one together. Okay? All right. Is anybody able to crack it? कुछ सोच रहा है, कुछ समझ रहा है कि टफ लग रहा है? See, I'll tell you what. Let us solve this question together. देखो, क्वांट बेस्ड रीजनिंग के क्वेश्चंस हम पहले से ऑब्जर्व कर रहे हैं. इवन द इजी वंस देखने में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, तुरंत नहीं क्लिक होता कि क्या करना है. बट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट डूइंग इट, यू अंडरस्टैंड इट वाज रादर अप्रोचेबल, right? So the same thing applies even for higher order questions of quant-based reasoning, right? So here what's going to happen is, okay, somebody's asking me, is this about anything to do with average? Let us see. Not really. Okay, but good, है ना? Like even my first instinct by looking at this question would be, is this something related to average with which I can find like individual values and then probably go ahead, है ना? Nature of questions भी देखो. Nature of questions में क्या दिया है? Okay, what is the maximum possible score by any student? So on and so forth, the questions are given, right? So I'll tell you how we can approach this question. Okay, let's approach this one. So in a class of 5 students, we have 5 students, PQRST, 5 students. All participate in Maths Olympiad, and there are 6 teachers who announce the result in unique way. Each of these 6 teachers announce the sum of scores exactly of the 4 numbers. 4 students. 4 students का sum उन्होंने बताया, ठीक है? So let us see, 5 में से 4 का कितने combinations possible है, right? Out of these 5 students, how many combinations of 4 are possible? So let's say you out of 4 we have to have 5 का combination. P and C अगर हम लगाए combination के हिसाब से basically ये 5C 4 बनता है, which we haven't learned so far. So because we haven't learned this, मैं तुम्हें अभी logic बता रही हूँ बस. So logic is what? Logic is basically out of 5 you have to pick 4. मतलब if you have to pick 4, it means you have to ignore 1, right? You have to ignore 1. So let us ignore T first. So the score is P, Q, R, S. Then let us ignore S. Then let us ignore R. Then let us ignore Q. Then lastly, let us ignore P. Right? Selecting 4 out of 5 is equal to ignoring 1. Right? So we ignored 1 and then these are the combinations. So how many combinations we got? We overall got 5 combinations of 4 students. Right? Now if there are 6 teachers, who are announcing the scores, but the possible combinations are only 5, मतलब there's one score which should be repeated, right? कोई तो एक टीचर होगी ना, जो कोई तो टीचर होगी जो कोई एक स्कोर रिपीट कर रही है. मतलब आउट ऑफ दीज 5 कॉम्बिनेशंस कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो 2 टीचर्स बता रही है. करेक्ट? यस और नो? ये लॉजिक समझा हमको? बिकॉज देयर आर 6 टीचर्स and only 5 combination of students, it means some teacher is repeating a combination of student का score, right? So now the scores are this. ठीक है, उन्होंने क्या क्या बोला है हमको? I will write ऊपर. A, B, C, D, E, F ने अनाउंस किया 660, 780, 690, 720, 630 and 750 का स्कोर, राइट? होल पॉइंट इज रिपीट कैसे नहीं हुआ? ये 6 के 6 नंबर्स अलग कैसे आए? पॉसिबल ही नहीं है ना, बिकॉज 5 ही कॉम्बिनेशन से तो 5 ही टोटल्स हो सकते हैं. 6 टोटल्स कैसे आए यहाँ पे? So it says one teacher is very bad at calculation. She committed mistakes at adding the score. Score of each contestant is an integer value. ठीक है? So one person has made a mistake. And that is why we have these 6 different scores when we were supposed to have only 5 different scores. है ना? When we were supposed to have only 5 different scores, we have 6 different scores because one of these people have made a calculation mistake and we don't know who. So अब whole point is the question will be about. अब ये तो दे दिया है. Questions क्या है? Question is what is the maximum possible score of any student? Who made the mistake? Right? Who cannot make the mistake? Things like that are asked.
So let us see how can we process the information here. So let me tell you. We will start by, अभी ये 6 स्कोर्स में से एक मिस्टेक है, राइट? तो हमें रैंडमली कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे, फिर से वैसे ही. We will have to make combinations in such a way that we'll have to ignore one score and take the other 5, associate it here, and then be like, कि score आ रहा है कि नहीं आ रहा है. So let us start in descending order. I would say descending order मतलब सिलेक्शन वाइज. ठीक है, तो अपन अलॉट करते हैं. लेट्स से यहाँ पे 780 स्कोर है, फिर 750, 720, 690, 660. एंड व्हाट डिड वी इग्नोर? वी इग्नोर 630. कि 630 किसी को नहीं मिला है. जो टीचर ने 630 कंसिडर करा है उस टीचर ने करी है मिस्टेक. ठीक है, ये इस टीचर ने करी है मिस्टेक, ऐसा हमने अज्यूम किया. फिर वी कैन गो अहेड विद दिस, है ना? I feel like I want to write this all in black color, so pardon me. Yeah, I'll take smaller thickness. Yeah. So what are we going to do? We are going to allocate descending order में 5 scores, right? क्यों? मतलब देखो, अब हमको we have to select any 5 scores. One is going to be wrong, that's why, है ना? And it is irrespective कि हर एक इंसान पे डिपेंड नहीं करता, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन का कौन सा स्कोर है, that doesn't matter. So I am just taking it in descending order for the sake of it. So that's why 780. 750, 720, 690, 660. And the one that is ignored, mistake. Either way, are we clear? Are we clear till here? Yeah? Now what we're going to do is, we are going to understand कि यार देखो, अब मैं इंडिविजुअल इंसान का स्कोर निकालू कैसे निकालू? So the way to think here is कि यार ये PQRS है और ये PQRT है, दोनों में 30 का डिफरेंस है स्कोर का, एंड द डिफरेंस इज कमिंग ओनली बिकॉज ऑफ एस एंड टी, राइट? PQR तो कॉमन ही है, तो इफ दिस स्कोर 30 का डिफरेंस है, दैट इज बिकॉज एस एंड टी के कारण. इसका मतलब एस इज 30 मोर देन टी. फेयर? वी कैन अज्यूम दिस. अज्यूम क्या है? ये है, ऐसा ही है, राइट? बिकॉज PQR आर कांस्टेंट, सो व्हाटएवर डिफरेंस इज कमिंग इज बिकॉज यू रिमूव्ड एस एंड एडेड टी, राइट? तो मतलब एस इज 30 मोर देन टी. वैसे इन दोनों की कॉम्बिनेशन में अगर हमने देखा तो इट्स आर एंड एस, सो हियर आर इज एस प्लस 30. इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखा, इट्स क्यू एंड आर हियर, राइट? क्यू एंड आर हियर, एंड योर क्यू इज आर प्लस 30. इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखा तो देन इट इज पी, एंड पी इज क्यू प्लस 30. पी एंड क्यू. फेयर? डिड वी गेट दिस पार्ट आल्सो? यस, यस, वेरी गुड. तो अभी इससे क्या पता चला हमको मिल गए, तो हमारे पास 5 वेरिएबल्स है, P, Q, R, S, T. If we have 5 variables, we need 5 equations. We have 4 here. What will be the 5th equation? 5th equation will be fact that P, Q, R, S चारों का टोटल 780 है, राइट? P, Q, R, S का टोटल 780 है, या P, Q, R, T का टोटल 750 है, कुछ भी ले सकते हो. हम P, Q, R, S से बेंचमार्किंग करते हैं, तो P, Q, R, S का स्कोर कितना है? 780 है. तो हमको सबकी वैल्यू एक ही वेरिएबल में निकालनी है. लेट अस से वी एंड अप फाइंडिंग, यहाँ पे देखो, दिस इज इन फॉर्म ऑफ एस, दिस इज इन फॉर्म ऑफ एस, तो यहाँ पे भी आर दो, क्यू इज आर प्लस 30 एंड आर इज एस प्लस 30. तो यहाँ पे ये एस प्लस 60 हो गया क्यू, राइट? और क्यू एस प्लस 60 हो गया, तो दिस बिकम्स एस प्लस 90. सो ऑल आर इन फॉर्म ऑफ एस नाउ. तो आई नो पी इज इक्वल टू एस प्लस 90, क्यू इज इक्वल टू एस प्लस 60, आर इज इक्वल टू एस प्लस 30, एंड एस इज इक्वल टू एस. एंड आई नो सम ऑफ पी क्यू आर एस इज 780 एज पर द टोटल दैट वी हैव टेकन. तो इस इक्वेशन से हमें आता है 4s प्लस 180 इज इक्वल टू 780. तो s की वैल्यू कितनी आती है? 600 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 150. सो इफ s कम्स एज 150, व्हाट आर अदर वैल्यूज? हमको फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, तो वो वैल्यू आती है p की. p विल बी हाईएस्ट, राइट? दैट इज 240. 150 प्लस 90, तो 240 इज कमिंग एज द आंसर, एंड दिस इज अ लेजिबल कॉम्बिनेशन. 630 can be a mistake. 630 can clearly be a mistake. And we have 240 as our answer. ठीक है? अब if we look at the options, we realize कि 240 उन्होंने ऑप्शन में दिया ही नहीं है. क्यों नहीं दिया है? Because probably there are more combinations possible. Of course there are more combinations possible. And we'll have to take all combinations. ठीक है? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे एक combination लिया जहाँ पे हमने 630 को ignore किया. Now we'll have to take other set of combinations where 630 is included and other scores are included. So let me take that combination. What I'm going to do is, hear me out. I'm going to make this is 630 and ignore and make 660 as something that I say is wrong marks. Can I do that? I can do that, right?
बिकॉज इफ यू टेक कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 5 एंड इग्नोर 1, तो पहले में हमने 630 इग्नोर किया था, अभी हम 660 इग्नोर करते हैं थोड़ा, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, फॉर दिस कॉम्बिनेशन क्या आता है, लेट अस सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ यू एंड अप सॉल्विंग, ब्लू से ही मैं मार्क करती हूँ, यहाँ पे 630, डू यू वांट मी टू राइट सेपरेटली और कैन यू इमेजिन इट हियर? आई होप यू कैन इमेजिन इट हियर, है ना। दिस स्कोर, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, दिस स्कोर इज फॉर, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट बंच ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब इसके बाद में सेकंड बंच ऑफ थिंग्स में यहीं पे स्क्रिबल कर रही हूँ, यू इफ यू वांट यू कैन राइट इट सेपरेटली आल्सो, लेट मी रिमूव दिस। ठीक है, and I'm like, okay, I'm going to consider 360 now and I'm going to ignore 660. So that way what happens, only this combination changes, nothing else changes. So if I ignore, if I change this combination, this becomes q plus 60, 60 का difference है, and hence this becomes, q is s 120, right? Because q is s plus 60, so s plus 60 plus 60 is s plus 120, right? That is the only thing that is changing. Others are remaining the same. तो अभी फिर इस कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, सिर्फ p की वैल्यू s plus 120 बन रही है, बाकी सारी वैल्यूज तो सेम ही है ना। तो सीधा सीधा मेरा बस यहाँ पे टोटल क्या आएगा, 30 ज्यादा आएगा, तो 4s प्लस 210 इज इक्वल टू 780 आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब 4s इज इक्वल टू हाउ मच, 570। तो देन s इज इक्वल टू हाउ मच, 1 जा 17, 4 जा 10 जा 2, decimal. It is coming as a decimal, right? Yes or no? It is coming as a decimal. ठीक है, and that is why this can't be a combination. So this is a wrong combination. We cannot take this combination. 660 इग्नोर करके हमने 630 लिया, ये कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। ठीक है, ओके, तो लेट मी जस्ट नोट इट डाउन। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इग्नोर किया 660 और ये कॉम्बिनेशन हो गया हमारा रॉन्ग। ठीक है, बाकी सारे नंबर हमने लिए थे। अब वी विल हैव टू गो फॉर थर्ड थिंग। थर्ड थिंग इज व्हाट आर वी गोना डू इज, वी आर गोइंग टू इग्नोर नाउ 660 की जगह पे वी आर गोइंग टू इग्नोर अभी द अनदर नंबर दैट इज 720, राइट। सॉरी, यहाँ पे तो 630 था ही ना, मैं सिर्फ 720 इग्नोर कर रही हूँ अभी। 720 इग्नोर कर रही हूँ, तो मतलब ये 660 हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको रीअरेंज कर देती हूँ ताकि हमारी सैनिटी मेंटेन रहे। कैलकुलेशन वाइज इट शुड बी प्रिटी, राइट। तो अगर मैंने ये किया अभी, इफ आई डू दिस, 720 मैंने रिमूव कर दिया और बाकी सारे नंबर्स मैंने लिए, तो अभी अगेन आवर सम्स आर गोइंग टू चेंज एंड वी आर गोइंग टू चेंज देम। हाउ वी आर गोइंग टू चेंज देम, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से चेंज होगा ना, यहाँ से तो s प्लस 60 आएगा, 60 का डिफरेंस है, यहाँ पे r प्लस 30 आएगा और यहाँ पे p प्लस 30 आएगा, तो दैट मेक्स हियर s प्लस 90, राइट, एंड दिस इज s प्लस 120। ऐसे हुआ, करेक्ट? आर यू फॉलोइंग मी? We are just taking different combinations and we are replacing it there itself. In your book, you can keep writing as a different case for sure. ठीक है, और हम बस डिफरेंसेस निकाले जा रहे हैं, कैलकुलेशंस करे जा रहे हैं। You just keep a check that the calculations are not going wrong anywhere. ठीक है, अब इसमें भी वही होगा, we will do the same thing. P हमारा s प्लस 120 है, Q हमारा s प्लस 90 है, R हमारा s प्लस 60 है और S हमारा ऐसी है। तो ये 4s प्लस कितना बन रहा है, this 4s plus how much, 150 plus 120 is 270. So 270 is equal to, total is again 780 at the end of it. So 4s is equal to how much, 510. So s is equal to how much, 510 is divisible by 4 or what? No, it is not, right? 4 की डिविजिबल टेस्ट क्या होती है, हम लास्ट टू नंबर्स देखते हैं, एक्चुअली पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 74 से डिविजिबल नहीं था, 10 4 से डिविजिबल नहीं था, तो ये भी कॉम्बिनेशन डज नॉट वर्क। तो दिस कॉम्बिनेशन ऑल्सो डज नॉट वर्क, जहाँ पे हमने 720 अज्यूम नहीं किया, बाकी पांचों नंबर अज्यूम किए, so this combination also does not work. Up next again, one more combination we are going to try, 750 we are going to ignore, right? So if we end up ignoring 750, और बाकी सारे कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन कहाँ डिफरेंस आता है, डिफरेंस हर जगह आता है, ये दोनों नहीं आएंगे, ये दोनों नहीं आएंगे, ये और ये चेंज होगा, राइट। क्या आएगा, s इज इक्वल टू p प्लस 60, राइट। उसके बाद यहाँ पे आएगा s इज इक्वल टू t प्लस 60 एंड देन दिस इज s प्लस 30,
right? This is r plus 30, so this becomes 60, and this is again q plus 30, so this becomes 9, right? Now for this combination again, we are going to be like, okay, so let me take p is equal to s plus 90, q is equal to s plus 60, r is equal to s plus 30, and s is equal to s. You should rather be able to do it quickly. अभी देखो ये ऊपर वाला कॉम्बिनेशन फिर से आया है, कुछ अलग नहीं आया, राइट? जो हमारा पहले था वही आया है, वो पहले वाला कॉम्बिनेशन ही आया है जो यहाँ पे आया था. दिस इज 4s plus 180, so this is possible. So s is equal to 150 again, and s 150 आया, तो the biggest number is p again, which is 240 only. This combination is working for us. This combination was made. यहाँ पे for symmetric purposes लिख देती हूँ कि हमने यहाँ पे नहीं लिया था और ये कॉम्बिनेशन काम किया था, और यहाँ पे हमने 750 नहीं लिया है और ये कॉम्बिनेशन भी काम आया. अब द लास्ट थिंग टू डू इज इग्नोर 780. The last thing to do is we ignore 780 and we take 750, right? So now this is going to be again 30 30 30 30 का jump जो हमारा पहले आया था. Okay? 30 30 30 30 का difference. So again the same thing, again the same thing. Okay, so let us continue फिर आगे, है ना? We will continue this. Let us continue and finish our entire logic here. So here it is again. Now next number that we're gonna ignore is 780 and one more. हमने बीच का 690 ignore करना हम भूल गए थे actually. 690 वाला कैलकुलेशन हमने किया ही नहीं है, यहाँ पे तो 720 इग्नोर किया था ना हमने. 690 वाला कैलकुलेशन किया नहीं हमने, राइट? 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 हैव यू नोटेड इट? डिड यू नोटिस दैट 690 इग्नोर करने वाला कैलकुलेशन किया नहीं हमने, है ना? Yes or no? Are you noting it down or just like looking at the screen? नहीं, no, we didn't. Very good. All right. All right. So let's continue now. So 750 done. Now we are going to ignore 780. तो अभी इसकी कैलकुलेशन करते हैं. What's gonna change? Again it is 30 30 30 30 only. Same thing that happened in the first calculation जो हमने पहला किया था, उसमें भी same ही था. So again this is going to be the same as this. 750 780 इग्नोर करने से भी ये सेम ही कैलकुलेशन आने वाला है और ये 240 ही होने वाला है. पी और एस 120 आने वाला है बिकॉज इट इज सेम, बिकॉज डिफरेंसेस 30 30 30 के ही आ रहे हैं. So it is the same thing all over again. But no, it's not the same because PQRS is 750 here, not 780. चलो, then let us do this one again. Actually, I personally think कि हमने पहले 690 वाला कर लेना चाहिए ताकि वो ना हो, मतलब 780 अब तक टोटल था ना हमारा, तो 780 रहे इसीलिए. तो लेट मी जस्ट गेट फ्रॉम हियर ना. कैलकुलेशन इजी करने के लिए वो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरे तरफ से ओवरसाइट हो गया था. ठीक है, इधर तक है. तो ये आ गया आंसर हमारा. अब नेक्स्ट व्हाट वी गोना डू इज 690 जो हमसे छूट गया था वो 690 हम अभी इग्नोर करेंगे. So we're going to ignore 690 and we are going to take 750 back. So this is going to be 750 720. Maintaining the order for ease of calculation. तो उस हिसाब से अगर मैं अभी सॉल्व करूँ तो अगेन दिस इज 30, दिस इज 30, दिस becomes 60, दिस becomes 60, दिस इज 30 ओनली. तो ये r plus 60 तो ये s plus 90 बन गया और ये s plus 120 बन गया, है ना? तो अगर अगेन सेम कैलकुलेशन हियर, कुछ अलग नहीं हो रहा है. P is equal to s plus 120. अच्छे से लिखेंगे. P is equal to s plus 120. Q is equal to s plus 90. We have done this calculation पहले. PQR is equal to s plus 30. S is equal to s. So now this becomes 4s plus 240. 4s plus 240 is equal to 780 again. Right, because PQRS is 780. So this brings S की value is how much now? Tell me. It is 540 divided by 4, which is 4 ones are 4, 4 threes are 12, 4 fives are 135. So then P की value is highest. Highest value is 120 plus 135, which is how much? 255, right? So 255 is your answer here, which is greater than 240. So now we are getting somewhere. राइट, और ये कहां से आया? ये इग्नोर करने से आया 690 को. 690 को इग्नोर करने से आया. अब लास्ट कैलकुलेशन इज पेंडिंग कि हम 780 इग्नोर कर दे और फिर हमारा पूरे कॉम्बिनेशन टेकन. ठीक है,
780 इग्नोर कर देंगे। करो कैलकुलेशन से और मुझे बताओ क्या आ रहा है। और बाकी अगेन 720, 750, 720, 690, 780 इग्नोर करने से क्या आ रहा है 1। हाँ क्यों? बिकॉज दिस इज अगेन ओके। सो इन दिस सीक्वेंस अगेन व्हाट्स गोना हैपन इज 30 30 30 का डिफरेंस आएगा जो हमारा ओरिजिनली आया था। सब में 30 30 30 का डिफरेंस आएगा। तो अगेन इट इज गोइंग टू बी द सेम थिंग व्हिच वी हैव बीन डूइंग सो फार, दैट इज p इज गोइंग टू बी s plus 90, है ना, एंड q इज गोइंग टू बी s plus 60। ये मैंने सॉल्व नहीं किया है बट कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मैं कर ही लेती हूँ। ये t plus 30 हो गया, ये plus 30 हो गया, यहाँ पे भी प्लस 30 हो गया, यहाँ पे भी प्लस 30 हो गया, तो यहाँ पे प्लस 60, यहाँ पे प्लस 90 हो गया, है ना। तो s प्लस 90, s प्लस 60, r इज s प्लस 30 and s is s. So again this is 4s plus 180 now, but this will be equal to 750 because PQRS is 750 now. So when we do this calculation, s की वैल्यू कितनी आती है, माइनस करो 70570, again s comes in decimal. So again this is not, what did we do, we ignored 780, but this is also not possible. So our combinations are coming only in three cases, that is 630, 750 and 690. Now once you crack this logic, अगर तुमने एक logic fast crack कर लिया होता तो then you realize that it is very quick to solve, है ना। अब मैं तुम्हें explain करते करते solve कर गई इसलिए, but the main trick here was to come at this logic कि oh we can find the value of PQRS like this. That was tough part. Calculation is not tough part. In fact the patterns are repeating, है ना। When you ignore the least number that is 630 or the highest number 780, the differences between numbers are 30 30 30 30, so it's gonna come the same, right? और उस तरीके से तुम इजीली निकाल सकते हो कि ओ इट वर्क्स और इट डजंट वर्क और व्हाटएवर, ठीक है। एंड इस तरह से हमको तीन कॉम्बिनेशंस मिले। तो अब एज पर दीज कॉम्बिनेशंस हमको यहाँ पे मैं पी की वैल्यू 240 ऊपर लिख लेती हूँ ताकि यू नो इट इज एसोसिएटेड विद ऊपर वाला नंबर। तो एस की वैल्यू हमें आई 150, पी आया 240। तो अभी पी क्यों निकाला हमने, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर पॉसिबल। तो हाईएस्ट नंबर हमारा पी आ रहा था बिकॉज पी वाज एस प्लस हाईएस्ट नंबर, राइट। तो तीनों भी हमने कॉम्बिनेशन देखे जो हमारे राइट कॉम्बिनेशंस है। तो इसमें आंसर 240 आ रहा है, इसमें आंसर 240 आ रहा है पी का, और यहाँ पे 255 आ रहा है। तो द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी कैन बी 255। सो व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनी नंबर, बिकॉज सी द नंबर्स दैट वी हैव टेकन PQRS वो तो इंटरचेंज हो सकते थे, राइट। उनका सीक्वेंस कुछ था नहीं, हमने अज्यूम कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर क्लैरिटी इन कॉन्वर्सेशन कैलकुलेशन। अदरवाइज ऐसा कुछ सीक्वेंस नहीं था, बट एनी पॉसिबल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स इज 255, right? Then they are saying in the above question, who made the mistake in adding the sum of the marks obtained by student? Who made the mistake in above question? 690 made the mistake. 690 किसके मार्क्स थे, C के मार्क्स थे, right? 690 किसके मार्क्स थे, C के मार्क्स थे। That's why C made the mistake. Which of the following teachers could not make a mistake while adding the scores of the students? कौन नहीं मिस्टेक बना सकता, 660, 720 एंड 780 मिस्टेक नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे फिर हमारे आंसर सही नहीं आ रहे, राइट। 660 किसका है, ए का, तो ए कांट मेक अ मिस्टेक। 720 किसका है, बी का, बी कांट मेक अ मिस्टेक। 780 किसका है, बी का, बी कांट मेक अ मिस्टेक। वन ऑफ ए डी बी कैन नॉट मेक मिस्टेक, तो डी कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, बिकॉज इफ डी मेक्स अ मिस्टेक, जो केस आती है हमारी, वहां से हमारे इंटीजर आंसर्स नहीं आते, तो दैट इज नॉट अलाउड, राइट। देन बोला है if the sum of the scores obtained by students was 480, sum of the scores obtained by two students was 480, कोई भी दो स्टूडेंट्स का सम हमें 480 चाहिए। which of the following students could have made, teachers could have made the mistake, ठीक है। अब देखो could have made the mistake, which of the following teachers could have made the mistake, बताओ, यहाँ पे तुम बताओ कि क्या आएगा, कौन कौन मिस्टेक कर सकता है। 630 मिस्टेक कर सकता है, 750 मिस्टेक कर सकता है, 690 मिस्टेक कर सकता है, राइट। 630 किसका है, 630 किसका है, ई का, ई कैन मेक मिस्टेक, can't make mistake and can make mistake, e can make mistake। 660 किसका है, 660 नहीं सॉरी 690 किसका है, सी, सी कैन मेक अ मिस्टेक, एंड 750 किसका है, ई, एफ, एफ कैन मेक अ मिस्टेक। तो दीज थ्री पीपल कैन मेक अ मिस्टेक। तो अभी वो बोल रहे हैं कि दो स्टूडेंट्स का सम तुम्हारा 480 आना चाहिए, तो किसकी मिस्टेक होगी। तो इसलिए हमको सबके मार्क्स निकालने पड़ेंगे, तुम्हारे पास अलग अलग केसेस थे ना, तो उससे मार्क्स निकालो। यहाँ पे एस की वैल्यू तुम्हारी 150 आई थी, है ना, पी वॉज 240, ठीक है। Q is how much, S plus 60, so Q is 210, right? R is 180,
ठीक है, और टी तो कुछ छोटा नंबर था ना, है ना, टी वॉज एस माइनस समथिंग राइट, तो वो तो और छोटा आएगा। दो नंबर्स का सम यहाँ पे 480 कहीं पे पॉसिबल हो रहा है क्या? नहीं पॉसिबल हो रहा है राइट, नहीं पॉसिबल हो रहा है, तो दिस इज नॉट द केस। सिमिलरली यहाँ पे भी फिर केस नहीं आएगी, यहाँ पे भी नहीं आएगी, सेम सेम चीज ओनली यहाँ पे नहीं आएगा राइट, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। यहाँ पे पॉसिबल है क्या देखते हैं इस केस में। तो यहाँ पे हमारा क्यू कितना आ रहा है, एस प्लस 90 आ रहा है, एस प्लस 90 मतलब 225 आ रहा है ना, तो टू क्यू की वैल्यू 225 आ रही है, तो 255 प्लस 225 480 है क्या, है ना, है राइट। तो 480 दो स्टूडेंट्स, किसी भी दो स्टूडेंट्स का सम अगर 480 आ रहा है, मतलब दिस इज द केस वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज द केस वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हु कुड हैव मेड अ मिस्टेक देयर, 690 वाला, 690 वाला वन है सी अगेन। तो इफ द सम ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स इज 480, which of the following teachers could have made a mistake? C has made a mistake, because that's the case we are talking about. Now they are saying if the sum of the scores obtained by any students was 495, अब 495 है, 495, तो सबसे पहली बात तो इन द फर्स्ट टू केसेस, ये वाला केस एंड ये वाला केस, 495 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारे नंबर 000 में आ रहे हैं। 5 वाला नंबर सिर्फ इस वाले केस में आ रहा है, उसमें भी हाईएस्ट सम इज पॉसिबल ऑफ पी एंड क्यू, बिकॉज टी इज इवन स्मॉलर। पी एंड क्यू का सम मैक्सिमम 480 आ रहा है, 495 सम तो है ही नहीं कहीं पे, तो दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। 480 इज द हाईएस्ट स्कोर वी आर गेटिंग बाय एडिंग एनी टू स्कोर्स, राइट, एनी टू स्टूडेंट्स के स्कोर्स। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल सम ऑफ 3 स्टूडेंट्स। 3 स्टूडेंट्स का लीस्ट पॉसिबल सम हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें लगेगा टी का वैल्यू ऑल्सो, बिकॉज टी इज लीस्ट। तो मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि मैंने टी का वैल्यू लिखा नहीं कहीं भी, तो टी मेरे पास होना चाहिए था, है ना, टी मेरे पास होना चाहिए था। बट होल पॉइंट इज दैट इन एवरी ईच केस टी वाज बेसिकली एस माइनस 30 राइट, एस माइनस 30 था। तो टी यहाँ पे एस माइनस 30 मतलब कितना आएगा, टी यहाँ पे 120 आएगा, है ना। यहाँ पे 750 नहीं लिया था हमने, मतलब 720 था डायरेक्टली, 780 और 720 का 60 का डिफरेंस था, तो टी वुड बी -60, तो टी यहाँ पे 90 था, तो यहाँ पे हमने 690 नहीं लिया था, मतलब 780 एंड 750 दोनों लिए थे, तो अगेन ये टी माइनस एस माइनस 30 ही होगा, दैट इज 105, है ना। ये हमारे आंसर्स आए, थोड़ा विचड़ विचड़ हो गया, बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो अभी इसके बेसिस पे हमको क्या मिल रहा है, व्हाट कैन बी द लीस्ट पॉसिबल सम ऑफ 3 स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू टेक द लीस्ट 3 आर टू टी एस एंड आर, टी एस एंड आर लीस्ट 3, उनके सम तुम बताओ कहाँ पे लीस्ट आ रहे हैं। ये हियर इट इज, हियर इट इज 150, 180 एंड 120, टी की वैल्यू 120 है ना। यहाँ पे सम है 150, 180 एंड टी की वैल्यू 90 है, लेसर देन दैट फॉर श्योर, ठीक है। यहाँ पे टी इज 105, हाई वैल्यू, नो हाई वैल्यू 105, एस इज 135 एंड आर इज 165, so definitely this is the combination we are looking for. What is the addition here? 330 plus 90 is 420, right, 420 आ रहा है, so 420 is the least possible sum that we can be getting at. उससे कम कुछ है क्या, 15101, अरे यहाँ पे 405 आ रहा है ब्रो, सॉरी दिस इज 405, दिस इज 405 है ना, ये आपने को सब 405 आ रहा है, 105 plus 135 plus 15101 405, so 405 is the least possible score of any 3 students. So do we get this question? How did we do it? Yes, no, yes, very good. So largely remember that these kind of questions are definitely calculation intensive, but once you're able to find patterns, it's rather very easy and quick to solve, है ना। अगर तुम खुद की स्पेस में अभी तुम, मेन थिंग इज कि लॉजिक अपील होना कि यार ऐसा डिफरेंस लेके आएगा, है ना, तो वो मेजर लॉजिक है। आई वुड वांट यू टू सिट इन योर स्पेस एंड स्टार्ट अ टाइमर एंड डू दिस, कि once this logic hits me, really how much time does it take for me to solve, and you will realize that it's not more than 10 minutes for you to come up with all the combinations once the logic hits. Now it's about logic कितना जल्दी hit होता है, but no, you won't require more than 10 minutes if you keep writing. अभी हमारे पास स्पेस कम थी, यहाँ पे मुझे तुम्हें दिखाना था, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। जब मैं खुद सॉल्व करूंगी पेन पेपर पे, तो शायद मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग लिख लूंगी, सो देयर इज नो कंफ्यूजन लाइक दिस, है ना। 5 नंबर की कॉम्बिनेशन पट 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 में लिख लूंगी, उसके बाद एवरी टाइम तुम्हें ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज तुम पैटर्न रिकॉग्नाइज करोगे कि अरे 30 30 60 60 90 90 120 वैसे ही नंबर आ रहे हैं, एंड फिर क्विक 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 कैलकुलेशन तुम्हारे होने लगेंगे once you develop the logic. It will require 10 minutes, and answering the question is going to require another 10 minutes. So this is definitely a 15 to 20 minute set for you to start with, है ना, definitely a time taking set. If you're somebody who's very perceptive,
मैथ्स मैथमेटिकल लॉजिक जिसका बहुत फास्ट है, जो बहुत जल्दी पैटर्न्स गेस कर देता है, वो 15 मिनट्स में भी सॉल्व कर सकता है. बट 15 to 20 मिनट्स इज एन ओके टाइम टू सॉल्व दिस साइड. ठीक है, बिकॉज इट इज कैलकुलेशन.